تحریر اسدار چودھری وہ ایک بے رحم قاتل اور بدنام زمانہ فاتح تھا۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو قتل کر کے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ وہ دشمن کو قتل کر کے خوش ہوتا تھا۔ وہ وحشی فاتح ایک ٹانگ سے لنگڑا بھی تھا۔ آخری عمر میں اس پر چنگیز خان کی طرح چین فتح کرنے کا خبر سوار تھا، اسی لیے اس نے چین پر فوجی حملہ کیا اور مارا گیا۔ دنیا کے بدنام زمانہ فاتحین میں سکندر اعظم، جولیس سیزر، ہمنی بال، بسمارک، ہٹلر، یزید یلدرم، چنگیز خان شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جب حقائق اور فتوحات کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے تو ان تمام میں وہ سر فہرست اور حقیقی معنی میں دنیا کا بدنام زمانہ فاتح قرار پاتا ہے۔ سکندر اعظم اور چنگیز خان کو اپنے سے کم تر طاقتوروں سے سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم جس فاتح کی کہانی کو سنانے جا رہے ہیں اس نے ہمیشہ خود سے کئی گنا بڑی فوج اور مملکت کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ اس کی تقریباً ساری زندگی قتل و غارت میں گزری۔ اس کا نام تھا امیر تیمور۔ امیر تیمور سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں برلوس قبیلے میں 1336 میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور کا تعلق ترک قبیلے برلوس سے تھا۔ اس کا چنگیز خان کے خاندان سے تعلق تھا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ امیر تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے اور لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ امیر تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے جنگ میں انسانوں کا قتل عام کرتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کو قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ 776 ہجری میں کاشغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہوا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ 1381 بمطابق 783 ہجری میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر اور 785 ہجری میں کندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 عیسوی میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران وہ پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔ تیمور نے 1392 عیسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا۔ اس مہم کے دوران میں اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا۔ آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد بغداد اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح امیر تیمور پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ 1398 عیسوی میں امیر تیمور ہندوستان کو فتح کرنے نکلا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 عیسوی میں وہ دہلی پہنچا۔ اس وقت دہلی کے شاہ نصیر الدین محمود تغلق کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ ساتھ ہی دہلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ دہلی فتح کرنے کے لیے راستے میں امیر تیمور نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے تمام لوگوں کو لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد تمام ہندوؤں کو قتل کر دیا گیا۔ پاس میں ہی تغلق پور میں پارسیوں کی آبادی تھی۔ یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ تیمور کے حکم پر پارسیوں کے سارے گھر جلا ڈالے گئے اور پارسیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد پھر تیمور کی فوج نے پانی پت کا رخ کیا۔ امیر تیمور کے خون خرابے کی خبر سن کر پانی پت کے لوگ پہلے ہی شہر چھوڑ کر دہلی کی طرف فرار ہو گئے تھے۔ پانی پت پہنچ کر تیمور نے شہر کو تہس نہس کرنے کا حکم دے دیا۔ راستے میں لونی کے قلعے سے راجپوتوں نے تیمور کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اب تک تیمور کے پاس تقریباً 1,00,000 ہندو قیدی تھے۔ دہلی پر چڑھائی کرنے سے قبل اس نے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ بھی حکم صادر کیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اگلے دن ہی دہلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی۔ محمود ڈر کر دہلی چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپا۔ دہلی پر فتح کے بعد جشن مناتے ہوئے مغلوں نے کچھ خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو لوگوں نے مخالفت
मुखालफत की। इसके रद्द अमल में तैमूर ने दिल्ली के तमाम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का हुक्म दिया। 4 दिन में सारा शहर खून से लथपथ हो गया। दिल्ली को फतह करने और वहाँ कत्लेआम करने के बाद वो मेरठ गया और वहाँ दरिया जमुना की बलाई वादी में हिंदुओं के मुकद्दस मुकाम हरद्वार में लोगों का ये समझकर कत्लेआम किया गया कि काफिरों को मारकर सवाब कमाया जा रहा है। 1399 ईस्वी में तैमूर समरकंद से अपनी आखिरी और तवील तरीन मुहिम पर रवाना हुआ। तबरेज पहुंचकर उसने सुल्तान मिस्र के पास सफीर भेजे जिनको कत्ल कर दिया गया। चुनाचे तैमूर सुल्तान मिस्र की सरकूबी के लिए रवाना हुआ और हस्बे दस्तूर लोगों का कत्लेआम किया और शहर में आग लगा दी। इस दौरान में सुल्तान बायजीद यलदरम ने एशियाई कोचक में तैमूरी इलाकों पर हमला कर दिया। तैमूर ने इख्तलाफात को खतो किताबत के जरिए हल करना चाहा, लेकिन जब उसमें कामयाबी ना हुई तो उसने सुल्तान बायजीद यलदरम की सल्तनत उस्मानिया पर लश्कर कुशी कर दी। अमीर तैमूर ने हजारों सिपाहियों को जिंदा दफन कर दिया। सुल्तान बायजीद यलदरम उस वक्त कुस्तुनतीनिया इस्तांबुल के मुहासरे में मसरूफ था। तैमूर के हमले की इतला मिली तो मुहासरा उठाकर फौरन अनातोलिया की तरफ रवाना हुआ। आनकरा के करीब 21 जुलाई 1402 ईस्वी को दोनों के दरमियान में फैसला कुन जंग हुई, जो जंग आनकरा के नाम से मशहूर है। बायजीद को शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन तैमूर इसके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आया। समरकंद वापस आने के बाद तैमूर ने चीन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। चीन एक जमाने में चंगेज खान की औलाद के कब्जे में रह चुका था, इसलिए तैमूर चीन पर भी अपना हक समझता था। चीन में सर्दियां शबाब पर थीं और तैमूर बूढ़ा था, ऊपर से वो शदीद बीमार भी। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। 18 फरवरी 1405 ईस्वी को वो चीन के दरिया सेहून के किनारे शदीद सर्दी के आलम में सत्ते की हालत में 70 साल की उम्र में मर गया। अमीर तैमूर की बाहैसियत एक सिपा सलार हैरत अंगेज सलाहियतों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसने इस खुदादाद सलाहियत से जो काम लिया वो इस्लामी रूह के खिलाफ था। उसकी सारी फतुहात का मकसद जाती शोहरत और नामवरी के अलावा और कुछ नहीं था। इस लिहाज से वो खालिद बिन वलीद, महमूद गजनवी, अर्तुगरुल और सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले में पेश नहीं किया जा सकता। वो इंतकाम के मामले में बहुत सख्त था, मुखालिफत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो मुसलमान होने के बावजूद खून रेजी और सफाकी में चंगेज खान और हलाकू खान से कम नहीं था। दिल्ली, अस्फहान, बगदाद और दमिश्क में उसने जो कत्लेआम किए उनमें हजारों बेगुनाह मौत के घाट उतार दिए गए। वो इंतकाम की शिद्दत में शहर के शहर ढा देता था। ख्वारिज़म, बगदाद और सिराय के साथ उसने यही किया। हकीकत ये है कि इस मामले में मंगोलों की तरह वो भी अल्लाह का अजाब था। अमीर तैमूर किसी शाही खानदान का रुकन नहीं था, लेकिन अपनी जात से अलबत्ता वो एक शाही खानदान की बुनियाद डाल गया। गारतगर था, ढाने और गिराने वाला था, मगर जब बनाने की तरफ रागिब हुआ तो बेमिसाल इमारतें उसने तामीर करवाई। सिकंदर की तरह किसी बादशाह का लड़का नहीं था और ना चंगेज खान की तरह किसी लाओ लश्कर वाले का वारिस। अमीर तैमूर के बारे में मुअर्रिखीन के 2 गिरोह हैं। एक गिरोह ने उसको शैतान कहा और दूसरे गिरोह के मुताबिक उस जैसा आली मुकाम और आली ज़र्फ कभी पैदा नहीं हुआ। एक गिरोह के मुताबिक वो एक बेरहम कातिल, मकरू फरेब में उस्ताद कामिल था और अदावत और इंतकाम में खुदा का कहर था, जबकि दूसरे गिरोह के मुताबिक अमीर तैमूर हिम्मत और शुजात में यकता था, इसीलिए सारे एशिया ने उसके सामने सर झुकाया। तैमूर अगरचा दुनिया के बड़े लड़ने वालों में बहुत बड़ा दर्जा रखता है, लेकिन बादशाहों में वो बदतरीन बादशाह था। लायक बहादुर था, फयाज था, लेकिन शोहरत का ख्वाह, सख्त गीर और जालिम था। इसी वजह से अमीर तैमूर की सल्तनत उसकी मौत के साथ ही मिट गई। आसार कदीमा की एक टीम ने समरकंद में तैमूर की कब्र कुशाई की, जिस पर मालूम हुआ कि तैमूर लंगड़ा था। जवानी में एक जंग में वो शदीद जख्मी हुआ और दाएं पैर से लंगड़ाने लगा। इसी वजह से उसका नाम तैमूर लंग पड़ गया। मगरबी मुमालिक में उसे इसी नाम से जाना जाता है। तारीख का मशहूर तरीन बादशाह जिसकी कब्र पर लिखी तहरीर में उसे खोलने से मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कब्र खोली गई तो उस दिन क्या हुआ, ऐसी दास्तान के जानकर आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। अमीर तैमूर के मज़ार पर तहरीर था कि जब मेरे मुर्दा जिस्म को उठाया जाएगा तो जमीन कांप उठेगी। इस तहरीर को नजरअंदाज करते हुए 1941 में रूस के 2 माहिरीन इल्म बशरियात ने
अमीर तैमूर की कब्र कुशाई कर डाली। तारीखदानों के मुताबिक अंदर एक और तहरीर मिली जो कुछ यूं थी, जो शख्स मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी खौफनाक हमला आवर को खोल देगा। जिस रोज दोनों माहिरीन ने अमीर तैमूर की कब्र कुशाई की, उसी रोज जर्मनी के एडोल्फ हिटलर ने रूस पर तारीख का सबसे बड़ा फौजी हमला कर दिया। माहिरीन ने नवंबर 1942 में अमीर तैमूर की बाकियात को दोबारा इस्लामी तरीके से दफना दिया और उसके कुछ ही दिन बाद रूस को हिटलर के मुकाबले में फतह मिल गई। अमीर तैमूर की बाकियात के तज्जिये ने साबित किया कि वो लंगड़ा था। उसका दायां बाजू भी जख्मों की वजह से शल और कमजोर हो चुका था और दाईं रान की हड्डी बराह रास्त घुटने की हड्डी से जुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो अपनी टांग को सीधा नहीं कर सकता था। माहिरीन ने अमीर तैमूर की खोपड़ी और चेहरे की हड्डियों से उसके चेहरे और शक्लो शबाहत का भी अंदाजा लगाया। माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि अमीर तैमूर की वज़ाक़ता मंगोल नस्ल जैसी थी। वो जनूबी साइबेरिया के मंगोलों की तरह नजर आता था। तारीख में दो सल्तनतें तैमूरी सल्तनत कहलाती हैं, जिनमें से पहली अमीर तैमूर ने वस्त एशिया और ईरान में तैमूरी सल्तनत के नाम से कायम की, जबकि दूसरी ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में सल्तनत मंगोलिया के नाम से कायम की। जब तैमूर ने ईरान फतह किया तो उसने फारसी के मशहूर शायर हाफिज शिराजी को बुलाया और उनका एक शेर दोहरा कर पूछा कि क्या ये आप ही ने कहा था कि मैं अपने महबूब के रुखसार पर खूबसूरत तिल के एवज समरकंद और बुखारा को कुर्बान कर दूंगा। जवाब में हाफिज शिराजी ने कहा, हाँ ऐ शाहजहां, ये शेर मेरा ही है। अमीर तैमूर ने फारसी के इस अजीम शायर को कहा कि मैंने तो तलवार के जोर पर बड़ी मुश्किल से समरकंद को फतह किया था और इसके बाद शहर पर शहर फतह कर रहा हूँ, मगर तुम तो इस समरकंद को शिराज की किसी मामूली छोकरी के रुखसार पर तिल की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो। हाफिज चंद लम्हे तो खामोश रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, ए अमीर, ऐसी ही गलतियों की वजह से आज इफलास का शिकार हूँ। हाफिज की हाजिर जवाबी पर तैमूर हंस दिया और शायर को इनामो इकराम देकर रुखसत कर दिया। तैमूर सिर्फ एक फाते नहीं था, बल्कि इल्मो अदब से गहरा शगफ रखने वाला इंसान था। ईरान को फतह करने से कबल उसे ईरान के शायर हाफिज शिराजी के बहुत से अशार याद थे। वो खुशामदियों के साथ वक्त जाया करने के बजाय अक्सर औकात इब्ने खल्दून के साथ बहस मुबाहिसा करता था। अमीर तैमूर की अपनी खुदनवीश तज़किए तैमूरी के नाम से मशहूर हुई। इस किताब में तैमूर ने यह दावा किया कि उसकी जंगो जदल का मकसद अल्लाह ताला के दीन और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोग देना था। इस दावे से इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि तैमूर ने बहुत सी जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी और हजारों नहीं लाखों मुसलमानों को कत्ल किया। इस किताब के अंदर तैमूर ने अपने तजर्बे की रोशनी में हुक्मरानों के कुछ उसूल और आदाब बयान किए हैं, जो आज के हुक्मरानों के लिए काबिल गौर हैं। तज़किए तैमूरी में कहा गया है कि अच्छे हुक्मरानों को हमेशा मुशावरत और दूर अंदेशी से काम लेना चाहिए। दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। नरमी, दरगुजर और सब्र तहम्मुल को शार बनाना चाहिए। तैमूर ने लिखा कि जो लोग मेरे वफादार रहे और मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, मैंने हमेशा उनकी ख्वाहिशात का एहतराम किया। मैंने अवाम को अदलो इंसाफ दिया, ना तो अवाम के साथ ज्यादा सख्ती की कि वो मुझसे नाराज हो जाएं, और ना ही उन्हें इतनी आजादी दी कि वो बेकाबू हो जाएं। इसके बरक्स जो सिपाही अपने आका को धोखा देकर मेरे पास आ जाते तो मैं उन्हें अपना बदतरीन दुश्मन समझता था। तैमूर ने लिखा है कि एक अच्छे हुक्मरान का कौल उसके फेल के मुताबिक होना चाहिए। वो जो कानून दूसरों पर नाफिज करे उसका खुद भी एहतराम करे। अच्छे हुक्मरान को मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। वो अपने वजीरों की कही हुई बातों को आंखें बंद करके तस्लीम ना करे, बल्कि उनकी तफ्तीश करे। अच्छे हुक्मरान को कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए। तज़किए तैमूरी में अमीर तैमूर कहता है कि अच्छे हुक्मरान को ऐसे अफराद को वजीर बनाना चाहिए जो अमूरे हुकूमत नेकी और हुस्ने सलूक से चलाएं, निफाक की बातें ना करें, ना किसी को बुरा कहें, ना किसी की बुराई सुने। अमीर तैमूर ऐसे वजीरों को फारिग कर देता था जो ज्यादा वक्त दूसरों की बुराई करते थे। वो लिखता है कि कीना परवर, हासिद और गुस्सीला आदमी अगर वजीर होगा तो वो किसी भी वक्त दुश्मन से साजबाज कर सकता है। लिहाजा नेक लोगों को वजीर बनाना चाहिए ताकि खल्के खुदा को फायदा हो।
अमीर तैमूरी को मौलाना रूमी की शायरी पसंद नहीं थी और वो मौलाना रूमी की हड्डियां कब्र से निकालकर जलाना चाहता था। मारूफ मुसन्निफ हैरोल्ड लेम ने उसे आखिरी फाते आलम करार दिया है। उसकी जिंदगी घोड़े की पीठ पर बसर हुई और आधी दुनिया के लश्करों को यके बाद दीगरे मलगूब किया और अपनी सल्तनत वस्ती एशिया से अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, फारिस, बगदाद और दमिश्क, अंकारा और आर्मीनिया तक वसी की। खरासान के शहर सब्जवार पर जब फतह पाई तो 1.5 लाख खोपड़ियों का मीनार बनवाया ताकि दुनिया जान ले कि उसके आगे सर उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। तैमूर की जिंदगी एक ख्वाब से शुरू होती है और एक ख्वाब पर ही खत्म होती है। समरकंद और बुखारा पर सफरत हासिल करने के बाद अमीर तैमूर ने एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा जिसमें उसे आसमान में मुअल्लिक एक सीढ़ी पर चढ़ने की तरगीब दी जाती है। जब वो कई जीने ऊपर चढ़ चुका होता है तो एक गैबी आवाज आती है, क्या तू जानता है कि तूने कितने जीने तय कर लिए हैं? तैमूर ने जवाब दिया, नहीं। फिर आवाज आई, तू जितने जीने चढ़ आया है ये तेरी जिंदगी के शबो रोज हैं। अलबत्ता तू जब जिंदा रहेगा ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा। लिहाजा एक नसीहत याद रख कि हमेशा दानिश्वरों, उल्मा, सनतकारों और शायरों का लिहाज रख। उन्हें इज्जत और एहतराम की निगाह से देख, चाहे वो तेरे मुखालिफ ही क्यों ना हो, और ऐसे लोगों को हरगिज तकलीफ ना पहुंचा, खा वो तेरे दीन को ना मानते हों। तैमूर ने इस नसीहत पर अमल किया। वो जिस शहर को ताराज करता वहाँ लाशों के अंबार लगा देता, लेकिन वहाँ के अदीबों, शायरों और दानिश्वरों के घरों को जाए अमान करार दे देता। एक जगह लिखता है कि मैं मसनवी पढ़ने के बाद मौलाना रूम से मुतनफर हो गया, क्योंकि मौलाना रूम तमाम मज़ाहिब को एहतराम देता था और किसी मजहब को किसी दूसरे पर फोकियत नहीं देता था, जबकि मेरा अकीदा था कि इस्लाम बकिया तमाम मज़ाहिब से बेहतर और आला है। जब मैं कोनिया में दाखिल हुआ तो मेरे साथियों ने कहा कि मैं मौलाना रूम की कब्र ढा दूं और उसकी हड्डियां कब्र से बाहर निकाल दूं, लेकिन मैंने अपने आप से कहा, तैमूर एक मुर्दे के साथ लड़ाई बुरी बात है और मैं मौलवी की कब्र ढाकर खुद को रुसवा नहीं करूंगा। लेकिन अमीर तैमूर ने कत्लो गारत का जो बाजार गर्म किया उसकी मिसाल भी नहीं मिलती।